question that's this question is see. The variation of horizontal and vertical distances with time are given in encasement to velocity of projections. हमें दिया how the x and y coordinates for body varies with time. So हमें velocity of projection बतानी है. Velocity of projection means you have to find the initial velocity of the bodies. हमें जो information given x coordinate varies as 60. Y coordinates varies as 80 minus 4.9. So velocity in x direction is dx by dt. X direction में dx by dt means it would be 60 की differentiation 6. Velocity in y direction is dy by dt. So when they say that velocity of projection means initial velocity. At t is equals to 0. T is equals to 0. Vx is equals to 6. यहाँ पे t 0 पुट करोगे तो dy is 8. अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो इसे वेलोसिटी इज 6i plus 8j and magnitude of velocity is फिर भी 10 feet per second. Clearly method. अगर इसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कुछ होता तो क्या था? तो yes, what's the angle of projection? हमारे को ऐसे दिया है ना, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है 6, y डायरेक्शन में वेलोसिटी है 8 इनिशियल. तो ये एंगल कितना होगा? tan थीटा. y डायरेक्शन में 8, x डायरेक्शन में 6, तो tan थीटा इज tan की वैल्यू 4/3 कब होती है? cos 53 is 3/5, sin 53 is 4/5. So tan 53 is 4/3. तो अगर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछा वो भी बता सकते हैं यहाँ से. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 53. अब अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, you can do any calculation इसकी. अगर मैं आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछूं तो क्या हो जाएगा? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? 2u by g. 2u by g. u by हमें पता है यहाँ पे इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी. मैक्सिमम हाइट पूछेंगे तो u by square by 2 थी. रेंज पूछेंगे तो 2ux uy by g. So once you know the horizontal and vertical velocity, you can do the remaining calculation. Clear है ये method? किसी क्वेश्चन नहीं है तो कर ही लिया आपने. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan inverse moment. It was calculated that a shell when fired from a gun with a certain velocity at an angle of elevation 5 pi by 36 radian should strike a given target from practice. It was found that he just intervened the trajectory. The angle of elevation at which it should be fired to hit the target. क्वेश्चन समझ आया क्या भैया? हमें दिया कि हमारे पास
कहीं यहां से फायर करना था टारगेट। To fire at an angle of 5 pi by 36. It was found that he'll just intervene the trajectory. मतलब बीच में हिल आ रही है अभी, which is not allowing us to hit the target. हमने बताना है किस एंगल पे फायर करें so that you are able to hit the target. हमें सेम कौन सी वैल्यू चाहिए? रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज कौन से दो एंगल्स के लिए सेम होती है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब थीटा एंड 90 माइनस थीटा। तो अगर वो थीटा से हिट नहीं कर पा रहा, बीच में हिल आ रही है, तो यू शुड हिट एट एन एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा टू हिट द टारगेट। और क्योंकि वैल्यू रेडियंस में दी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 90 माइनस थीटा। रेडियंस में लिखोगे तो 90 पाई बाय 2 माइनस 5 pi by 36. That means 18 pi by 36. So you should fire at an angle of 13 pi by 36. Because 90 degree को pi by 2 लिख लिया बस। Clear है? Particle is thrown with velocity u at an angle theta from horizontal. Another particle is thrown with same velocity at an angle theta with vertical. Ratio of time of flight in the two cases. एक बार हमने थ्रो किया एट एन एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, एक बार एट एन एंगल थीटा विद वर्टिकल। रेशियो ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट्स इन द टू केसेस। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था? इसका फॉर्मूला तो हमें पता है। This vertical velocity u sin theta in body is thrown at an angle theta with vertical. तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो जाएगा? नाइनटी माइनस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अब क्या हो जाएगा? स्टूडियो कॉस थीटा पे the ratio of time of flights. Tan theta is to 1. Clear है मैथड? Yes, sir. Class में क्या हुआ? Body is thrown with velocity u making an angle of theta with horizontal. Its velocity vector is perpendicular to initial velocity. इसका हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था क्लास में और एक कंडीशन भी लिखी थी बाद में। दिस फॉर्मूला क्या था?
Initial and velocity at any instant will be perpendicular after a time of. किसको याद है फॉर्मूला? किसी को नहीं आता? ये क्वेश्चन याद है फिर मैं आपको याद है ये इनिशियल डायरेक्शन है after some time velocity becomes perpendicular to initial velocity. The velocity becomes perpendicular to initial velocity means v dot u should be zero. Acceleration is g. तो v को कैसे लिखा था? याद है तो कंडीशन क्या लिखी थी? थीटा शुड बी greater than equal to 45. Greater than or equal to 45. Because अगर 45 से कम होगा तो there will be no point where they are perpendicular. So theta is greater than or equal to 45. So yeah, the body is projected with velocity making an angle theta with horizontal. Its velocity when it is perpendicular to initial velocity. अब यही केस जो पिछला में मैंने किया है तीनों परपेंडिकुलर है तो v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू टू v and u are perpendicular. इस पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है? u cos थीटा. हम कह रहे हैं v is perpendicular to u. u जो है वो इस डायरेक्शन में तो वो u और हॉरिजॉन्टल में एंगल थीटा है. v और हॉरिजॉन्टल में 90 माइनस थीटा. तो इस वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा? This side angle है that is cos v cos 90 minus theta. And projectile में it says horizontal component of velocity remains unchanged. Cos theta is so it's u cot theta. Clear है? Stone is projected from top of a tower with velocity of 20 meter per second, making an angle of elevation of 30 degree with horizontal. Time of flight is 5 seconds. Height of tower, maximum height from the ground, दोनों values निकाल के.
You are given that you have a tower of 5 inch. The HP निकालना और ये भी निकालना maximum है. और time of flight दिया है 5 seconds. Horizontal velocity is 20 cos 30. Vertical is 20 sin 30. X निकालना है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कंसीडर करें या वर्टिकल. पहले मेरे को ये हाइट निकालनी है. चलिए कंसीडर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन. वर्टिकल. वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है. 20 sin 30. 20 sin 30 means 10 meter per second. Upward direction को positive ले रहा हूँ. Acceleration is -10 gravity. Time is S is -h. ठीक है ये चारों वैल्यूज. S is equals to QT. So height of tower कितनी आ गई. 75 meters. तो मेरे को ये बताना है कितनी ऊपर गई. इसका फॉर्मूला क्या होगा. H max का. UY square by 2G. UY है 10. तो फिर 5 मीटर. तो ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई. 75. टॉवर की हाइट थी 5 मीटर ऊपर गई तो 80 मीटर. मतलब ये भी ठीक है और ये भी ठीक है. दैट मींस सी इज द आंसर. सिर्फ यूआई 10 कैसे हुआ था. ऊपर यही है ना. 20 sin 30 and sin Okay, 30 is sir. half. Two seconds after projection, projectile is moving at 30 degree above horizontal. After 1 second more, it is moving horizontally. Angular projections. तुमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया एट एन एंगल थीटा. और मेरे प्रोजेक्शन के 2 seconds के बाद it's moving at an angle of 30 degrees. And after 1 more second, it is moving horizontally. Horizontally body किस पॉइंट पे मूव करती है प्रोजेक्टाइल में. जहां सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल ना हो. एच मैक्स. H max. So that means 3 seconds पे वो यहाँ पहुंच गई है. क्या बताना है इनिशियल वेलोसिटी. हमें ये क्या बताना है. टाइम ऑफ असेंट. टाइम ऑफ असेंट होता है u sin थीटा बाय g. u sin थीटा दिया 3g.
Angle which velocity makes with horizontal. एक फॉर्मूला ड्राइव किया था तो हमें इसमें वैल्यूज क्या tan 30 sin theta is crazy after 5 seconds. Tan 30 is 1 by root 3. तो u cos theta कितना आ गया? आ रहा है समझिए तो tan 30 की वैल्यू कुछ कर दी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैसे निकलेगा two sin theta is crazy. So tan theta is root 3 plus theta is 16. देखो आ रहा है समझ क्लियर है मेथड ये फॉर्मूला किया हुआ है। हाँ ड्राइव किया हुआ है क्लास में बोर्ड पे भी लिखा हुआ भी देख लेना जाके तो बोर्ड से भी रन ली साइड वाला बोर्ड है उस पर फॉर्मूला लिखा हुआ है in the above problem acceleration due to gravity there is problem acceleration due to gravity तो हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया है तो जी ऑलरेडी दिया है तो उसको सॉल्व कर सकते दिया है तो इट्स माइनस 10 next is parabolic path of a projectile is represented by y is equal to x square root 3 minus x square by 16. Its angle of projections. Equation of trajectory दी है Why was general equation of trajectory क्या अगर दोनों को कंपेयर करें तो tan theta is 1 by root 3 theta is 30 दूसरा मैथड क्रॉस तो मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूं डिफरेंशिएट करके यही आएगा एट रीजन इनिशियली x is equals to 0 dy by dt is vertical velocity replace dy by vx और dy by vx क्या होता है dy is तो dy over vx tan theta तो tan theta is 1 by root 3 तो यहाँ तो आप डायरेक्ट कंपेयर करके ही लिख दो कि tan theta is 1 by root 3 यहाँ आप ऐसे डिफरेंशिएट करके भी देख सकते तो डायरेक्ट लिखना बेटर है कि डायरेक्ट लिख दो आप
Next thing. Projectile is fired with speed u at an angle theta with horizontal. Its speed when its direction makes an angle alpha with horizontal. करो इसको easy question है. Initially projectile makes an angle theta with horizontal. हमने बताना है what will be the velocity when it makes an angle alpha with horizontal. कैसे करें? कौन सा कंसेप्ट? प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या है? U cos theta. एक्सेलरेशन. प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल Zero. जीरो. हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी. अगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी Constant. कांस्टेंट. जब वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी? यू cos थीटा. सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना सोच को ले लो. हमें पता है हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है. फिर हमें दिया जब वेलोसिटी वी है कि एंगल अल्फा, ये दोनों इक्वल होने चाहिए ना हमेशा. u cos theta should be equals to v cos alpha. Say as an oblique projectile. Horizontal velocity remains constant. V is give a few averages. U cos theta secant alpha. Clear है? Yes. The projectile has initially the same horizontal velocity as it would have acquired if it had moved from rest with uniform acceleration of 3 meters square per 0.5 seconds. हमें दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है जो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ मूव करने 30 सेकेंड मूव करने के बाद. तो अगर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, 0.5 minute means 30 seconds. Velocity is 90. हमें दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यही है. मैक्सिमम हाइट इज 80. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है? y square is g is 20. Under root of 1600 is 40. ये कौन सी वेलोसिटी होगी? हमें कहा था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही है जो किसी बॉडी की होगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मूव करने के लिए 30 सेकेंड्स के बाद. तो मतलब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी पता है 90. वर्टिकल वेलोसिटी भी पता है 40. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज tan inverse 4/9.
देखो आ रहा है समझ। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाली है। तो समझ दिया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम एज इट इज रिक्वायर्ड इफ इट had moved from rest with uniform acceleration of 3 for 30 seconds। और मैक्सिमम हाइट से वर्टिकल वेलोसिटी निकाल ली। और फिर uy by ux is the tan theta। क्लियर? If the angle of projection is 60 degree, height of projectile when it has traveled a distance of 3r by 4, where r is the range। हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल बतानी है when it has traveled a distance 3/4 of range। ये हाइट कितनी हो? कैसे कर सकते हैं? ये कौन सा डिस्टेंस है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ये बस एक इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऐसे भी लिखी थी हमने। तो मैं यही बताना x की वैल्यू दिया 3r/4 into tan 60 3r/4 3√3r/16। सर हाँ जी। सर इसे वो वाला लग सकता है फॉर्मूला R is equals to 4h cot theta। उसका क्या करोगे? वो तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। r is equal to 4h cot theta में तो चाहिए वाली हाइट ये नहीं निकाल ली। Body is projected obliquely with a velocity of 19.6 meters per second. Has its kinetic energy at maximum height equal to 3 times potential energy. Angle of projection, its position after 1 seconds. हमें दिया है at maximum height is 3 times kinetic energy at maximum height. It's 3 times potential। और थीटा हमारे को दिया है वही थीटा वेलोसिटी दिया है। काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड जीरो होती है, यू cos थीटा होती है। cos theta। तो हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? फास्ट वेलोसिटी स्क्वायर दिस इज 3 टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी। Potential energy is mgh. H is mgh. M cancel. Cancel.
So get u square cos square theta plus tan square theta is tan theta is 1 by root 3. Theta is 30. हमने उसकी हाइट बतानी है पोजीशन आफ्टर 1 सेकेंड. तो हाइट आफ्टर 1 सेकेंड कितनी हो जाएगी अब? अगर हमें tan थीटा पता चल गया, इनिशियल वेलोसिटी पता है, डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 10 सेकेंड्स बतानी है वर्टिकल डायरेक्शन में. वर्टिकल वेलोसिटी q sin थीटा q t minus half t square 9.8 4.9. Maximum height is means after 1 second it is at maximum height. देखो ध्यान से, आप ऐसे भी सोच सकते हैं. uy is sin 30 is half. And time of ascent का formula with after 1 second it is at maximum height. क्लियर है? आपको ये जो इंफॉर्मेशन दी थी यहां से एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है. If 4 seconds be the time in which projectile reaches point P of its path, and 5 seconds the time from P till it reaches the horizontal plane through point of projection. Height of P from the horizontal. Wi-Fi is वही पॉइंट पी तक पहुंचने में 4 सेकेंड्स लगे, पी से वापस ग्राउंड तक आने में 5 सेकेंड्स और लगे. टोटल टाइम कितना हो गया? 9 सेकेंड्स. तो हमने हाइट बतानी है. टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 9 seconds. 9 सेकेंड्स. फॉर्मूला क्या था? U 2u sin theta by g. 2u by g is 9. u by कितना आ गया? 45 मीटर पर सेकेंड. अब सिर्फ O से P तक देखो. इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन. इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 45. एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन -10. O से P तक जाने का टाइम 4 सेकंड्स. डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? √P 180 minus 5 into 16. 100 meters. So G को 9.8 में क्लास है.
क्लियर है? Yes. The shell is fired from a long range gun with initial velocity 1000 meter per second at an angle of 30 degree. How long will it be in air? Free के ऊपर किसकी वैल्यू बतानी है? कितनी देर एयर में रही? So that means you have to find Time of flight. time of flight. Time of flight का formula U sin theta by G. Q given है 1000, theta दिया 30, G 10. ये cancel. So let's see the answer. In the above problem, distance where the shell fall on the ground. ये भी हो जाएगा. कौन सी वैल्यू निकालनी है? Range. रेंज कितनी होगा? तो रेंज का फॉर्मूला R is equals to 2U sin square साइन cos थीटा में थी. 1000 स्क्वायर साइन थीटा 30 था, साइन 60 और 10. 10 raised to power 5 into root 3 by 2. So it is 1.786600 happens. ये दो तो इजी थे क्वेश्चन. ये भी हो जाएगा मैक्सिमम हाइट रेंज u by square by 2g. Next is for body is thrown with a velocity. ये भी easy है. टाइम ऑफ फ्लाइट बताना है सिर्फ. Velocity भी दिया, angle of projection भी दिया है. The angle of projection to have maximum height and range in the ratio 1:4. एंगल बताना है, so that maximum height और range की रेशियो जो है maximum height and range. तो I have seen formula Sir 45 आएगा आंसर. R is equals to 4h cot theta. हमने दिया R is 4h. फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन करनी थी बस. फिर ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसके लिए मतलब ऐसे शॉर्टकट्स काम आएंगे आप. R is equals to 4h cot theta. Ball is projected with kinetic energy E at an angle theta. Highest point पे kinetic energy. और भी बता दो kinetic energy at highest point पे. E sin theta. अरे सोच के बोलो. हाईएस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? E cos theta. स्पीड क्या होती है? U cos theta. तो उसका स्क्वायर हाफ एम यू स्क्वायर. Okay. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं ले रहा हूँ यहाँ पे स्पीड है, यू बाई द यू कॉस है. इधर काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर. इस पॉइंट पे हो जाएगी हाफ हाफ एम यू स्क्वायर
cos square theta and half mu square is E. So at highest point, kinetic energy is E cos square. Two particles are projected with same velocity but angle of projection 35 and 55. Ranges are in the ratio 35 and 55. Complementary angles and 1:1. complementary angles, initial velocity, same. So range will also be same because these are complementary angles, theta or 90 minus theta. Or here they are projected with same velocity. So for complementary angles in same velocity, range is same. So 1:1. The potential energy of projectile at maximum height is equal to its kinetic energy there. Velocity of projection is 20, time of flight is. हमें दिया potential energy at highest point is equal to kinetic. Highest point पे potential energy क्या होती है? Subtract करना है तो मेरे MCQ. Highest point पे speed is h की value हमें दिया potential energy at highest point is kinetic energy at highest point. Kinetic energy at highest point is half mu square cos square theta. So means tan square theta is 1. Angle of projection is 45. Angle of projection 45 है तो time of flight क्या हो जाएगा? Velocity दी है 20. Two seconds. क्लियर है? तो अब ये दोनों फॉर्मूले सर पहला स्टेप फिर से समझा दो। MGH मैक्सिमम हाइट का वैल्यू पुट कर दी। मैक्सिमम हाइट होती है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो अब ये दोनों ओके वो माइनस लगता है सर। ये काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट और ये पोटेंशियल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी इज E cos square theta, पोटेंशियल एनर्जी इज E sin square theta। तो दोनों इक्वल है, वहां से थीटा निकाल के टाइम ऑफ फ्लाइट में डाल दिया। क्लियर है? यस सर। A stone is projected with a velocity of 22 meter per second at an angle of 45 degree. Average velocity during its motion from starting point to maximum height. When a stone is projected, force is the average velocity. Good 20. 20 कैसे? या फिर फॉर्मूला कराया था और भी एवरेज इसलिए कॉस्ट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम हाइट कितनी है, इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी है 20 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है 20। Maximum height is 20 मीटर। पार कितना हो जाएगा?
80 मीटर। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? टाइम ऑफ असेंट से ऊपर जाने का टाइम 2 seconds। अब एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट distance ओवर टाइम। traveled of full time. डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये डिस्प्लेसमेंट है। स्ट्रेट लाइन, डिस्टेंस ट्रैवल तो कर्व है, डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट लाइन है। ये डिस्टेंस अगर h है, ये डिस्टेंस कितना है? पूरी रेंज है, तो ये दिस विल बी 40, 40, 40. ये 40 है 20। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ 2000। डिस्प्लेसमेंट इज अंडर रूट 2000। O से P तक जाने का टाइम 2 seconds। एवरेज वेलोसिटी इज 2000 divided by 2. So it should be under root 2000 by 4. Under root 500. Under root 500 will be 10 root 5. सारा समझ कैसे नहीं? हमने Yes, sir. वेलोसिटी का फॉर्मूला Yes, sir. पूरे पाथ का लिखा था यू पास किया। कि अगर मैं आपसे पूछता ना O से यहाँ तक, वो फॉर्मूला था यू पास किया, यहाँ तो आधे पाथ का पूछा। तो आपको डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से करना पड़ेगा। अभी पहले डिस्प्लेसमेंट निकालनी पड़ेगी, फिर टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। सही क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे। ये वाले क्वेश्चन देख लेना। तो